বসে করুন না, কিছু মূল্যবান স্পিচ রাখার জন্য থ্যাংক ইউ। हम हिंदी और मिला के बात करें, इंग्लिश वगैरह जो भी है। अभी हमारे ऑनरेबल गेस्ट आसाम से मंत्री श्री राजेश चरखी এখন যে আমরা ওকরা জমাতিয়া হদারের যে এখন স্পিচ দিয়েছেন, তারপরে যতজন আমার কাজকাও, আমার যত এখানে টাইপিং কলই সবাই যারা আমার সমাজের সেবক আছেন, ওরাকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। সমাজের রক্ষা, protection of your society is only possible যদি আমরা এক পরস্পর নিজের নিজের সঙ্গে কথা বলে থাকে আর আমরা পার্টিসিপেট করতে পারে উনার প্রত্যেকের সুখের দুঃখের উৎসবের। এভাবে একটা সমাজ দেশের রক্ষা হয়। আজকে সকালে 5টার সময় আমি আমার ছেলে মহারাজা প্রদ্যোৎ অরুণাচলের স্পিচ উনি যেটা দিয়েছেন, আমি এমনি ফলো করি না, বাট আই ফলোড হিজ স্পিচ। উনার স্পিচে উনি বেসিকলি যেটা বুঝে ইতিহাসকে এবং ভবিষ্যতে ভারতের সুরক্ষা, আমরা প্রান্তের সুরক্ষা, আমরা নিজের ঘরের সুরক্ষা, then they will realize, তবে ওরা বুঝতে পারবে যারা শিক্ষিত আজকে যারা নিজেকে বলে একতা যদি না হয় দেশের মধ্যে, ভিতরের দেশের মধ্যে আজকে যে টেরোরিজম হচ্ছে, যেটা সমাজ অশান্ত, যা দিশা পাচ্ছে না, এটার কাজ কে করেছিল আগে? মূল কাজ, the root of democracy started in India many thousands of years ago. It is not a new concept in politics. Politics is a product today only for power. It is not serving us always as a tool for development in the mental growth, in friendship, बंधुता। राजनीति में का मतलब था, हमारे प्राचीन भारत में इसका मतलब था राजा का सेवा करना, और कृष्ण भगवान ने सबसे पहले राजनीति के धर्म में उन्होंने सेवा भावना रखा विभिन्न ढंग से। वो हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो पॉलिटिक्स नहीं आता। हमारे अंदर उम्र होते साथ स्पिरिचुअलिटी की बात आ जाती है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या है? मोरालिटी, दया, प्यार, एक दूसरे से मिलना, जो कि अभी खुदा ओकरा ने बहुत सुंदर से बोला कि हम जमतिया का खुदा में नहीं जाएगा, रियांग रियांग के जमतिया बोलेगा हम वहां नहीं जाएगा। इस ढंग से समाज जुटता गया। बुबागा का स्पीच में उन्होंने अरुणाचल में
पूरा नॉर्थ ईस्ट का मोज़ेक पूरा बहुत सुंदर ढंग से हमको ताज्जुब हुआ, बड़े सुंदर ढंग से उन्हें समझाया कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को सबको एक साथ मिलके अपने देश का रक्षा करना चाहिए। ये प्रश्न क्यों कहा? क्योंकि हम लोगों को हमारे ही जो चुने गए नेता जाते हैं उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स में समाज को तोड़ के मन में शंका पैदा करके समाज की उन्नति को रोक देते हैं। त्रिपुरा महाराजा जितने थे उनका पूर्व पुरुष जितने हम लोगों के थे, उन्होंने समाज को जोड़ा मगर किसी को शोषण नहीं करने दिया कि देव वर्मा है तो खाली देव वर्मा को देखेगा, जोमत्या है तो खाली जोमत्या को देखेगा, ये नहीं था। ইতিহাসের থেকে আমরা কিছু শিক্ষা পাই। উনি ধন্যমাণিক্যের কথা বললেন, উনি অনেক কিছু কথা বলেছেন। এখন আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বোর ইউ, বাট আমার মেইন কথা হলো কি আপনার বেসিক রুটস, আপনার আসল জড় কোথায় থেকে আপনারা আরম্ভ হয়েছে, কিভাবে আপনার সংস্কৃতির এই যে আমরা লক্ষ্মী পূজা, আমরা বিজয়া দশমী এবং গড়িয়া পূজা, মাইলুমা, হুরুম্মা, এইসব আমরা যে পূজা যতগুলি আছে সমাজের, ওই সময় তো কোর্ট এরকম ছিল না, তো কোথায় যাবে? সমাজের অধিপতির কাছে যাবে। সমাজের অধিপতিরে আগে যে রাজা সব থেকে বেশি কাজ উনার ছিল দেশের রক্ষা করা, সেনা রাখা, তো উনি একটা নির্দেশ দিতেন। তো আমার যত আমরা ত্রিপুরাতে যেটা আমি দেখেছি, আমরা যতগুলি সমাজের অধিপতিরা ছিলেন ওরা খুব ডেমোক্রেটিক, সারা জীবনের জন্য ওরাও নেই, ওরা একটা একটা ডিপার্টমেন্ট ওনারও ছিল। যেমন আমরা রিয়াং সম্প্রদায়, ব্রু সম্প্রদায়তে আছে, কাস্টাও আছে, সোশ্যাল আছে, ইকোনমিক আছে, আপনার পলিটিক্যাল আছে, জুডিশিয়াল আছে। এটা হলো আমরা ব্রু সমাজে। হলা সমাজের এক বছর আগে তারা কয়ে দেয় এবারে আমরা এই জিনিসটা দেখছি ঠিক হচ্ছে না, এখানে ডিভোর্স হোক, কোনো রোগ, সামাজিক রোগ এসে গেছে, এখন ড্রাগ খাওয়া, নেশা করা, যেটা এখন হচ্ছে ড্রাগ প্রবলেম, এটাকে ওরা শাসন করে দণ্ড দেয় এবং সমাজের মধ্যে বিবেচনা এইসব কথা হয়। এভাবে আমরা কলই সমাজের আছে, কাকিরসলয় আছে। সো দ্য বেসিক আমরা যে আজকে একসঙ্গে হচ্ছি কেন, Why are we together? हम क्यों आज मिल रहे हैं? हम इसलिए मिल रहे हैं कि उस कस्टम को याद करने के लिए और एक दूसरे से मिलके हमारे अंदर क्या कमजोरी आ गई है, तो उस कमजोरी को कैसे उठाना, खत्म करना चाहिए या उससे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारे समस्याएं। हमने जब हम रेवेन्यू मिनिस्टर थे त्रिपुरा में, हम लोगों का वीर विक्रम महाराज के टाइम में पूरा समाज का एक नियम था, पूरा समाज का। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर इसको बिल्कुल राजनीतिक लाभ के लिए
फायदा के लिए इसको बिगाड़ा, बहुत चालाकी से बिगाड़ा गया। हम भी उसके हिस्सा थे कांग्रेस पार्टी में। हम तो आए 1983 में, उसके बाद 88 में, उसके बाद पार्लियामेंट में हमने इसको रेज किया बात। कस्टमरी, ट्राइबल कस्टमरी एंड पर्सनल लॉ मेघालय में 77 में शुरू हुआ, त्रिपुरा में 1988 में जब हम रेवेन्यू मिनिस्टर बने उसको रखा। किसका भूल था? एडमिनिस्ट्रेशन का था। ऑफिसर लोग थे, उनको परवाह नहीं है, आज इस डिपार्टमेंट में कल उस डिपार्टमेंट में। हमारे समाज में हमारी जमीनें थी हमारे मेन आधार खाने का। नागालैंड में नहीं छो सका, मिजोरम में नहीं छो सका, मेघालय में नहीं छो सका, अरुणाचल में नहीं छो सका। हमारे यहाँ लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट में ठीक है, आप ले जाइए, जमीन ले जाइए, मगर क्षतिपूर्ण ठीक लीजिए। जब नागालैंड में 1954 में प्रत्येक फैमिली को 1600 रुपया दिया जाता था, त्रिपुरा में 250, 300, वो 300 भी डिवाइड होता था। 50 रुपया आज करके मॉडल ट्राइबल एक विलेज दिखा दिया और लूटा, और बाकी पैसा मिला भी नहीं, 300 भी नहीं पूरा मिला। तो वो भागा आसाम, कोई भागा मिजोरम। ये समस्या को बात करने के लिए हिम्मत चाहिए। हो सकता है हमारे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमारे में मैच्योरिटी भी नहीं थी। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। आज हम लोगों के साथ पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होता है, कोई साफ बात कर सकता है? नहीं करेगा। रोज पाकिस्तान भेज रहा है आदमी, रोज मारे जा रहे हैं, उसको धर्म में जाके उसको समझाया जा रहा है पार्टी पॉलिटिक्स के लिए। बहुत से पार्टीज ऐसे हैं। सच बोलना और दिल से बोलना बहुत जरूरी है। आइडियोलॉजी हो सकता है, मगर आइडियोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आइडियोलॉजी के नाम में अपने और जातियों का शोषण करें। और जातियों का कोई शोषण नहीं कर सकता, उसको दबा नहीं सकता। इस कारण समाज खंडित होने लगा। हम लोगों का प्रयास है त्रिपुरा का पुराना राजनीति में कि हम लोग सब एक साथ एक दूसरे के उत्सव में हम लोग मिले। मुस्लिम्स के लिए भी हम लोग ने किया। त्रिपुरा का महाराजा ने शाह शुजा के लिए जब वो भागा 300 साल पहले, एक हिंदू राजा ने, हमने लिखा शेख हसीना को ये बात, एक हिंदू राजा ने एक मुसलमान के लिए अपने राज्य में शाह शुजा मस्जिद बनाया, जो आज कुमिल्ला में है। यह सत्य है और हमको खुशी है बोलने के लिए कि हम इसको एहसान नहीं मानते हैं। यह मानवता था। वही मानव धर्म के वजह से लॉ बनते हैं, आइन बनते हैं। हर जाति को अधिकार है वो अपनी जाति के ऊपर गर्व करे, होना भी जरूरी चाहिए। वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। राजनीति में आदमी को सत्य नीति बताना पड़ता है। आदमी को खरीदना नहीं चाहिए। यही मेरा राजनीति में सबसे दुख कारण हमने अपने आप को
इससे धीरे धीरे अलग किया। कौन बड़ा कौन छोटा, एक ही रास्ता से हम लोग आए भगवान के यहाँ से, और इसी रास्ते जब हम चले जाएंगे तो फिर ये भी खत्म। आप भी वही रास्ते में जाएंगे, हम भी वही रास्ते से जाएंगे। कोई गाड़ा जाएगा, किसी को जलाया जाएगा। तो उच्च कोटि का जो राजनीति होता है उसको हमको अपनाना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा हमने हमेशा कहा सत्यता, आंतरिकता, देश सेवा भाव और मानवता। महाराजा वीरचंद्र ने हमको एक छोटा सा किताब मिला 2 दिन आगे, वो हमारा महाराज का बहन ने को दिया होगा। एक कोई 1940 में कोई चौधरी था, हमको पूरा नाम याद नहीं है, उसने वीर विक्रम के ऊपर लिखा है, और लिखा उसका टाइटल किताब का था प्राचीन त्रिपुरा, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट त्रिपुरा एंड मॉडर्न रूलर्स। इतना सुंदर टाइटल। ये बंगाली एक राइटर है, उसने लिखा, टाइटल किताब का देखिए, एंशिएंट, प्राचीन त्रिपुरा एंड मॉडर्न रूलर्स। वीरचंद्र महाराज कोई स्कूल नहीं गए थे, मगर साइंटिफिक माइंड था, उनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, फोटोग्राफी का ज्ञान था, वो पढ़ सकते थे संस्कृत, जबकि वो यहाँ का ट्राइबल थे। और जब उन्होंने सुना कि एक बंगाली लड़का एक अच्छे घर का कविता लिखता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर वो कर्सियोंग गए। वो उन्होंने आयु का बात नहीं देखा, जात नहीं देखा, उसका गुण देखा। 1905 में महाराज राधा किशोर माणिक्य ने फ्री यूनिवर्सिटी, बिना पैसे का यूनिवर्सिटी 1905 में तैयारी कर दिया कुमिल्ला में। और पूर्व बंग में 1922 में ढाका यूनिवर्सिटी बना। ब्रिटिश ने परमिशन नहीं दिया त्रिपुरा राजा को कि तुम फ्री यूनिवर्सिटी बनाओ, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जाके, उनके अच्छे दोस्त भी थे राधा किशोर महाराज, कहा कि महाराज ये हमको दे दीजिए, हम शांति निकेतन का स्थापना कर रहे हैं। राधा किशोर माणिक्य का बड़ापन देखिए, उन्होंने कहा जब मैं तुमको दूंगा किसी के यहाँ प्रचार नहीं करोगे। इसी ढंग से जगदीश चंद्र बोस, भारत का पहला साइंटिस्ट, जिसने कहा कि जीव हमारे पेड़ में भी है, पौधों में भी है। He proved, and today if we say something which is correct, it should not be taken to be used as a political weapon. महाराज ने, मेरे हस्बैंड ने, जब वो राजा बने 1965 में वॉर हुआ पाकिस्तान का, हमारे पास चिट्ठी है, हम इसको प्रचार का मामला नहीं सोचते, मगर अब समय आ गया बोलने के लिए। उस वक्त क्या किया, बिना कुछ कहे पूरा जो अगरतला शहर, अभी लीची बागान ये सब बना है, फ्री भारत के आर्मी को दिया। आर्मी के पास जगह नहीं था रहने के लिए, ये महाराज का प्राइवेट प्रॉपर्टी था। संधि के टाइम में महाराज हमारा राज्य दे रहे हैं भारत सरकार को, इसके विनिमय उनको ये जमीन मिली है। महाराजा वीर विक्रम ने 1942 में जब राइट्स हुए नवाखाली में, 10,000 बहुत बड़ी चीज होती, क्योंकि त्रिपुरा में
अगरतला का पॉपुलेशन उस वक्त 7-8 हजार था, और अरुणाधुति नगर में उन्होंने 10,000, और कोई ऐसा टेंट में नहीं रहा, पक्का घर के बना के दिया। क्रिश्चियन मिशनरी के लिए न्यूजीलैंड के लोग आए, महाराज को बोला हम लोग यहाँ पर एक मिशन का स्कूल बनाना चाहते हैं। महाराजा ने ये नहीं कहा तुम तो हमारे हिंदू देश में आए हो। आज कैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मीडिया में हैं, जो डेमोक्रेसी का ज्ञान हमको देते हैं, हमारे परिवार को भी देते हैं, हमारे जातियों को भी देते हैं, हमारे राज्य को भी देते हैं, क्या साहस से, क्योंकि वो तो कमाते हैं पॉलिटिक्स के माध्यम, पॉलिटिक्स के माध्यम ये धंधा बन गया है, देश को तोड़ देगा। आपस में बहुत हिंसा कराएगा, फैलाएगा। हम लोग छोटे राज्य हैं मगर हमारे में गुण है। तो आप लोग को हमारी बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहती हूं मैं। इस शुभ अवसर पे हम लोगों का लक्ष्मी पूजा है। हम लोग परस्पर सभी जितने हमारे यहाँ पर ओकराज आए हैं, अपने अलग अलग उसके आपस में मिलिए, एक दूसरे से बात करिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। यही हमारा आपको संदेश है, हमारा स्नेह आशीष है, और त्रिपुरा की उन्नति हो, और हम लोग जितना सकते हैं अपना सर्विस अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, यहाँ के लोगों के सुख के लिए हम लोग देंगे। जय हिंद। Thank you. I would like to get to the where is आप